This is the lecture 3, and today we discuss symbol and transform. In this lecture we will discuss voltage, current and its transformation. First we discuss what is source. Source क्या है? Source is basically to generate either in the form of voltage or current. इन इलेक्ट्रिकल सर्किट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा सोर्स क्या होता है? या तो वोल्टेज सोर्स होता है या करंट सोर्स होता है। और हम लोग फर्स्ट लेक्चर 1 से डिस्कस करते आ रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। इन द लेक्चर 1 वी डिस्कस KVL, इन लेक्चर 2 वी डिस्कस इन KCL, and in this lecture 3 we will discuss source and its different types. Now we will discuss some like source. Now source, and the source basically in this electrical circuit we will be in two parts. One is called as voltage source, other is called as current source. This voltage source and the current source we will be divided into two parts. One is called as dependent voltage source, other is called as independent voltage source. Okay, and the current is same. In the current we have also called as dependent current source, and there is an independent, we will say that this is current source. तो हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पूरे आपके जब सर्किट एनालिसिस करेंगे तो इन द होल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दिस वोल्टेज एंड करंट वी विल बी कम. हमारे पिक्चर्स में ऑलवेज वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स हमारे पिक्चर्स में ऑलवेज आएंगे. तो हमें ये जानना है कि कौन सा सोर्स के उसका सिंबल क्या है, वोल्टेज सोर्स का कौन सा सोर्स का क्या सिंबल है. तो फर्स्ट वी डिस्कस, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. ठीक, देन वी विल डिस्कस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, देन वी विल डिस्कस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. Now the first point is the dependent voltage source. Sorry, mistake. First we discuss independent voltage source. Independent voltage सोर्स. देखिए, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स थोड़ा सा रिटर्न में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप लोग इसको अच्छे से समझ ले. आई विल डिस्कस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. तो फर्स्ट इज कॉल्ड एज बैटरी सेल. अगर आप बैटरी की बात करते हैं तो दिस इज द सिंबल ऑफ दिस वोल्टेज. अगर आपको इस तरह का सिंबल है और यहाँ पर वोल्टेज V अप्लाई है तो इसको हम लोग कहते हैं सेल. जो आपका बैटरी सेल है डेट इज या बैटरी, जो उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका सिंबल इस तरह से होगा. तो दिस इज द सिंबल ऑफ द कॉल्ड एज सेल. ये जो हमारा पहला सिंबल है, तो ये किस तरह का सिंबल है? तो ये जो सिंबल है हमारा, दिस इज द सिंबल ऑफ
योर फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो ये जो फर्स्ट है दिस इज द सेल या बैटरी का सिंबल है और इसका यूनिट है वोल्ट। और ये जो साइन है दिस इज द जो आपका हायर लाइन है दिस इज पॉजिटिव और दिस लोअर line is negative. It means that this negative sign is as a ground and this a higher line is says that this is positive. Now the second one we say that this is called as DC voltage source. Now the second one is says this is the a goal circle and this is positive and this is negative. This symbol is defined as a voltage. This symbol is also as a voltage and this is the positive and this is called as DC volt. Okay, this is DC. What do you mean by DC? DC is called as direct current. ठीक है, DC is called as direct current. Direct. Okay. Now the third symbol, and in this case in the DC voltage, what is the frequency? This is the very important point. And in the DC voltage the frequency is frequency F is 0 Hz frequency. तो DC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितना होती है 0 Hz. Very good. Now the next is the third one. These are the symbol of the voltage source and the third one is says that this is the sinusoidal voltage source and that is all this one and this one is an independent of time. Independent of time. It is an independent of time है. तो जब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा 0 होगा. जब टाइम पे ही डिपेंड नहीं करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा 0. नो इन दिस केस दिस वोल्टेज V and this function of time t. This is the voltage V and this is the function of time t. This voltage source is called as your AC voltage. जो हमारे घर में जो वोल्टेज आता है उसको हम लोग कहते हैं AC वोल्टेज. और हमारे घर पे वोल्टेज क्या आता है 230 वोल्ट विथ फ्रीक्वेंसी कितना आता है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. ये इंडिया के लिए स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है. अदर कंट्रीज में लाइक US 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है आई थिंक. In India we will be the frequencies in 50 Hz. This is the standard frequency. तो 50 Hz frequency है और 230 वोल्ट हमारे घर में सप्लाई आता है. दिस इज फॉर द होम. ठीक है, तो दिस आर द रिप्रेजेंटेशन. तो हमारा पहला रिप्रेजेंटेशन जो था वो सेल एज ए बैटरी की तरह था और दिस नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज योर DC वोल्टेज. जो हमारे घर में जो बड़े बड़े बैटरा लगे रहते हैं, बैटरी जिसको आप लोग कहते हैं, जो पूरे होम को कंट्रोल करता है बैटरी, दिस इज द DC वोल्टेज. और जो हमारे घर में जो लाइन आता है दैट इज AC वोल्टेज, दैट इज एंड 230 वोल्ट एंड द 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. और इस केस में देखिए इन बोथ केसेस DC जब फ्रीक्वेंसी की DC सप्लाई की बात करते हैं, इन दिस केस द फ्रीक्वेंसी इज 0 हर्ट्ज. ये मैनी टाइम्स ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बनकर आता है कि DC की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, दैट इज इन 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. और ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. तो दीज आर द 3 सिंबल्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. अब इसमें से कोई भी वोल्टेज सोर्स आपका किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है. बट अब जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे दैट इज योर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. नेक्स्ट वी विल डिस्कस इज द डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. Next one we discuss dependent voltage source. Dependent voltage source.
इन दिस केस द डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का मतलब है कि वह किसी न किसी पर डिपेंड करेगा, चाहे वो करंट पे डिपेंड करे, चाहे वो वोल्टेज पर डिपेंड करे, बट इट विल बी डिपेंड ऑन समवन, वो किसी पर हमारा सर्किट डिपेंड होगा। लेकिन जब आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ेंगे इन द फोर्थ सेमेस्टर तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पे काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, बट हमारा जो एनालॉग सर्किट में है वी विल ओनली अंडरस्टैंड द सिंबल, कैसा सिंबल होता है। तो दिस इज एन डायमंड स्ट्रक्चर, इट इज लुक लाइक दिस, इट्स ए डायमंड स्ट्रक्चर। और अगर डायमंड स्ट्रक्चर में हो और दिस इज इन पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दिस इज नेगेटिव पोटेंशियल and suppose this is an voltage V of x. This symbol is defined as a dependent voltage source और ये dependent voltage source किस पे डिपेंड कर रहा है, some voltage Vx पर, ठीक है, कुछ भी वोल्टेज हो सकता है, ये करंट पर भी डिपेंड कर सकता है, बट हमारा मेन है कि हम लोग दिस सिंबल, ये जो आपका सिंबल है, ये जो डायमंड स्ट्रक्चर का जो सिंबल है, इसका मतलब है कि दिस इज एन डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्यों है, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस सिंबल है। प्लस और माइनस सिंबल किसका होता है, वोल्टेज सोर्स का होता है। तो बट यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, इससे पहले जब आप इंडिपेंडेंट की बात कर रहे थे या तो ऐसा था, नहीं तो आपका कैसा स्ट्रक्चर था, लाइक दिस, या अनदर केस लाइक दिस। बट यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, द सिंबल लुक लाइक इट इज़ ए डायमंड स्ट्रक्चर। जब डायमंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इस इज ए डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इट डिपेंड ऑन आइदर वोल्टेज, करंट, किसी पर भी वो डिपेंड कर सकता है। नाउ नेक्स्ट, next we discuss independent current source. Independent current source. Now in independent current source, the current symbol is look like this. This is an arrow and it's like arrow. ये जो arrow का मतलब है, this is like your current, ठीक है, and this current is nothing can be your DC current, ठीक है. Now in some books there is an, this is the symbol of the DC current, there is an arrow. Arrow का मतलब है this is the direction of current I. अगर यही this is the arrow, it's look like this, it means that this is the direction of current I. Arrow is moving in the upward direction. In this case, if the arrow is moving in the upward direction, so the direction of current is like this. If the arrow is in the downward direction, so the direction of current is this. Now in the AC current, this current is like double bubbles and it's like this, and this is the direction of current. So this is the, basically this is the symbol of the AC current. Okay. Now in this current, the current is depend on time t. Okay. This is the basically DC current and this AC current. These are the symbol of the independent current source. Now we discuss dependent current source. The dependent current source, it's look like this. Again it is in diamond structure and this is the current, this is the current, same in the diamond structure, but the arrow symbol is defined as a current and the plus minus symbol is defined as a voltage. And suppose this current of I, this is the symbol of the dependent current source.
डिपेंडेंट करंट सोर्स। ओके, तो ये जो आपके जो सिंबल्स हैं ये हमें जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि कौन सा डीसी सप्लाई है, कौन सा एसी सप्लाई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नो कौन सा हमारा डिपेंडेंट है और कौन सा हमारा इंडिपेंडेंट। और नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस इज द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन। ये थोड़ा समझना है। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इन द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है। ठीक है, सपोज जब हम वोल्टेज सप्लाई देते हैं, जब हमारा इनपुट अगर वोल्टेज सप्लाई है तो जो इनपुट रेजिस्टेंस है इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो दिस इज योर resistance and this is the internal resistance of this voltage source and this V of S. First, very important, this is your voltage source Vs and this is your limiting resistance. Limiting resistance. Okay. तो दिस इज द लिमिटिंग रेजिस्टेंस। तो अब आप देखिए क्या है, ये हमने जो सप्लाई वोल्टेज दिया, इस सप्लाई वोल्टेज का जो रेजिस्टेंस इस सप्लाई वोल्टेज से दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब आप वोल्टेज सप्लाई दीजिएगा तो जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसका कनेक्शन कैसा होगा? सीरीज कनेक्शन होगा। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं और जब वोल्टेज सप्लाई देंगे, दिस इनपुट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, now we discuss some transformation method. ठीक, now one point, suppose there is an one voltage source and there is an another voltage source. We see this diagram. There is an one voltage source is V1 and the other voltage source V2. What is the output voltage? V0. क्या होगा? Anybody? कोई बता सकते हैं क्या होगा? देखिए, हमने मेश एनालिसिस पढ़ा है तो हमें ये पता है कि हमें आउटपुट वोल्टेज में फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, लूप करंट लगा देते हैं। ठीक है, जब आप इस लूप करंट को लगाइएगा तो आप देखिए दिस इज करंट आई मान लेते हैं। तो हम चेक करेंगे कि इस लूप के अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो जब ये करंट का मूवमेंट होगा तो ये करंट सबसे पहले जब ये मूवमेंट करेगा तो ये सबसे पहले इसके निगेटिव टर्मिनल को टच करेगा। तो क्या लिखेगा? -V2। अगेन दिस करंट विल गोज V1, it is -V1 and this current will go to the plus of the V2. It is written as plus, sorry, it's V0, it's a V0 is equal to क्या होगा? 0। यही होता है लूप कंडीशन। तो V0 is equal to V1 plus V2। तो V0 is equal to क्या आ गया? V1 plus V2। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस क्वेश्चंस को देखिए कि पूछना क्या चाह रहा है। आपका जो क्वेश्चन था, दिस इज योर सप्लाई वोल्टेज प्लस एंड दिस इज माइनस। टोटल आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है कि ये दोनों वोल्टेज एक दूसरे का क्या हो रहा है? सम हो रहा है। देखिए कैसे, इसका निगेटिव टर्मिनल
इसका दिस वन, इसका निगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इसका मतलब जब पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे के साथ होगा तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, आपका ऐड हो रहा है। दिस इज V1 plus V2. In the same questions we discuss in this way, then we understand easily. Then we change, sorry, is it? If you same questions, if you change the polarity, and then we find V0, it is V1, it is V2. आप करंट का डायरेक्शन फिर से मूव कराइए, देखिए क्या हो रहा है। तो आपका क्या आएगा, दैट इज प्लस V2 माइनस V1 प्लस V0 इज इक्वल टू 0, देन V0 इज इक्वल टू V1 माइनस ऑफ V2. Now what are the difference in this method and this transmission method? यहाँ पर दोनों पोटेंशियल का पोलरिटी देखिए, V1 का निगेटिव पोटेंशियल आपके V2 के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो दोनों डिफरेंट पोलरिटीज़ है, तो वोल्टेज क्या हुआ, एडअप हुआ। यहाँ पर निगेटिव, इसका निगेटिव और इसका अगर दोनों सेम तरह के पोलरिटीज़ है तो एक दूसरे के साथ रिपेल होगा और क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। तो सब्ट्रैक्ट हुआ तो V1 माइनस V2। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप यहाँ पर समझ गए। नेक्स्ट, तो दिस इज द आई थिंक मेथड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस टू नो नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, दैट इज कॉल्ड एज वोल्टेज डिवाइडर मेथड। इसी वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन में वी सी दैट वोल्टेज डिवाइडर method we see in this case. Suppose this is your resistance and this is the another resistance and that is the another resistance is this R1 now the resistance R1, resistance R2 and this is the supply voltage. अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R2 दैट इज V2, क्या होगा। तो हम लोग को बाय यूजिंग दिस मेश एनालिसिस मेथड हमें पता है कि हम एक करंट I अप्लाई कर देंगे, ठीक। जब करंट आप I अप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, करंट का वैल्यू आप बताइए क्या लिखिएगा। ये पॉजिटिव, यहाँ से जब करंट इंटर करेगा इससे, और ये तो क्या लिखेगा, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, ये इसके निगेटिव टर्मिनल को टच करेगा, माइनस V इज इक्वल टू 0, देन V इक्वल टू क्या आ जाएगा, I R1 प्लस R2, ये होगा। नाउ R1 प्लस R2, तो I इक्वल टू क्या आ गया, V अपॉन R1 प्लस R2 होगा, ओके, ठीक। अब ये बताइए व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 दैट इज V2। तो V2 इक्वल टू क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि करंट I इंटू दिस रेजिस्टेंस ऑफ R2, ऐसा हो सकता है, क्योंकि यह करंट I यहाँ से भी पास कर रहा है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जब करंट पास होगा और मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस के साथ होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, और उस वोल्टेज को आपने क्या माना है, V2।
और I का वैल्यू आपने यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं I की वैल्यू। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन V2, तो V2 इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R1 प्लस R2, सॉरी I raised here and written here, and V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I raise this. Now V2 is equal to, put this value of I and it is written as V upon R1 plus R2 into this resistance of R2, ये होगा। तो this is the voltage V2। तो हमने फाइंड क्या कर लिया ओवरऑल दिस मेथड। अगर आप ओवरऑल देखिए तो व्हाट यू फाइंड, now you see overall you find the V2 equal to V into R2 upon R1 plus R2, ठीक है। तो व्हाट यू मीन बाय वोल्टेज डिवाइडर। अब हम वोल्टेज डिवाइडर मेथड को समझते हैं होता क्या है। और वोल्टेज डिवाइडर मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द सीरीज सर्किट। आप पैरेलल सर्किट में अप्लाई नहीं करते, क्योंकि आपने वोल्टेज की मैं जस्ट एक्सप्लेन दैट कि वोल्टेज के केस में देन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन वी अप्लाई द वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। अब देखिए ये पूरा रेजिस्टेंस आपका सीरीज में कनेक्ट। अब देखिए समझना है वोल्टेज डिवाइडर लगता कैसे है। अगर आप समझ गए तो आप हर क्वेश्चन, जो भी सीरीज क्वेश्चन होगा आप उस पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी सी, देखिए हमको किसके क्रॉस फाइंड करना है, एक क्रॉस रेजिस्टेंस R2। आप रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस फाइंड कर रहे हैं और रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस आपने वोल्टेज क्या माना है, V2। तो जो भी वोल्टेज आप मान रहे हैं रेजिस्टेंस R2 को, आप वही वोल्टेज आपको फाइंड करना है। सबसे पहले जो इनपुट वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, देखिए क्या है मेथड, जो इनपुट वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं दैट वोल्टेज V, ठीक है। और जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना है वो रेजिस्टेंस लिख दीजिए और डिवाइड बाय द टोटल सीरीज रेजिस्टेंस इन द सर्किट। जितने भी सीरीज रेजिस्टेंस उस सर्किट में है सब लिखना है। तो यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, R1 प्लस R2। समझे बात को। दिस इज द मेथड। सेम हमने मेश एनालिसिस का यूज करके वैल्यू फाइंड किया, V2 इक्वल टू V इंटू R2 अपॉन R1। अगर हम वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज डिवाइडर इज एप्लीकेबल फॉर द सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में है तो इसका मेथड क्या है कि जो सबसे पहले जिसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है वो रेजिस्टेंस लिखिए, दैट इज R2, डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन मल्टीप्लाई बाय द that supply voltage, okay। now we find that V, अगर हमको मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस फाइंड करना है, सपोज इरेज इट, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस फाइंड करना है, रेजिस्टेंस दिस R1, तो मेथड क्या है, मान लीजिए इसके क्रॉस हमने वोल्टेज क्या मान लिया, V1, देन V1 इक्वल टू क्या होगा, जिसके क्रॉस फाइंड करना है सबसे पहले वो रेजिस्टेंस डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज R1 प्लस R2, देन मल्टीप्लाई बाय द सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज क्या है आपका, तो दिस इज द मेथड बाय यूजिंग दिस वोल्टेज डिवाइडर, ओके। Now the voltage we find that this is the voltage V1 and V2, okay। Now suppose we go to the another questions, then we understand clearly। Suppose there is another resistance, let's look like this, okay। मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ वोल्टेज, दिस इज वोल्टेज V,
this is resistance R1, this is resistance R2 and this is resistance R3. Okay, then I have discussed only one. Suppose this resistance के क्रॉस हमें वोल्टेज V3 है, सपोज ये रेजिस्टेंस V3 है और V3 की वैल्यू हमें फाइंड करना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V3। तो सबसे पहले जिसके क्रॉस हमें फाइंड कर, पहले हमें देखना है कि ये कनेक्शन सीरीज में है, यस सीरीज में, ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अगर सीरीज में कनेक्शन है तो हम वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर लगाना स्टार्ट किए तो रेजिस्टेंस R3 के क्रॉस करना है, तो जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस करना है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम सबसे पहले R3 लिख देंगे। देन वी विल बी द डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कितने रेजिस्टेंस हैं, R1 R2 प्लस R3 and then divide by the V. So this is equal to the voltage. This is the using the voltage divider rules. Now next we go to the current. Now next we discuss about the current transformation method. Next we discuss current transformation. करंट ट्रांसफॉर्मेशन, करंट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। अगर मान लीजिए सपोज एक वायर है ये, ठीक है, इस वायर में एक और इधर से मैंने पैरेलल वायर, सॉरी डिस्कस, फिर देन वी डिस्कस, दो करंट I1 I2, देन व्हाट इज द आउटपुट करंट, आउटपुट कितना करंट फ्लो होगा, सॉरी मिस्टेक, व्हाट इज द आउटपुट करंट I0, क्या होगा, एनीबॉडी से बताया गया आपको। टोटल करंट क्या हो रहा है, यहाँ से करंट I1 आ रहा है और यहाँ से करंट I1, तो टोटल करंट I0 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2। इसका मतलब अगर दो करंट पैरेलल में है वो भी आइडियल करंट, कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, दैट इज I0 प्लस I1, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा हो सकता है, दिस इक्विवेलेंट सर्किट इज लुक लाइक I1 plus I2 and it is look like this, and this is the total current I0 will flow. So this is the current transformation. In current circuit जब होगा, जब हम करंट ट्रांसफॉर्मेशन की थोड़ी बात कर रहे हैं तो करंट ट्रांसफॉर्मेशन में वन पॉइंट है डिस्कस, जब हम वोल्टेज की बात कर रहे थे तो वहाँ पर रेजिस्टेंस जो कनेक्ट था वो सीरीज में कनेक्ट था, बट जब हम करंट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो हमारा जो, सपोज दिस इज द करंट I, दिस इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, दिस इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड दिस इज करंट I, तो दिस इज द करंट सर्किट। तो ये जो आपका है ये करंट सर्किट है, दिस इज द ओवरऑल करंट सर्किट, ये ओवरऑल आपका एक करंट सर्किट है। जब आप वोल्टेज सर्किट की बात हमने किया था तो क्या था, रेजिस्टेंस आपका सीरीज में था, दैट इज RS एंड दिस इज वोल्टेज, दिस इज द वोल्टेज सर्किट। इन द वोल्टेज सर्किट द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज and in the current source the input, this is called as limiting resistance. What do you mean by limiting resistance? Limiting resistance is basically to limit the flow of current या to limit the flow of voltage। मतलब ये मान लीजिए कि बहुत हाई वोल्टेज हो गया, then this resistance to protect the other circuit, तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है कि कितना करंट फ्लो करें, कितना करंट को लिमिट कर दें। अगर मान लीजिए कि आपका आउटपुट सर्किट 5 वोल्ट ही लेता है बट आपके पास सडनली बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ गया, तो दिस रेजिस्टेंस हैज एन टेंडेंसी टू लिमिट द वोल्टेज, तो सो इट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रेजिस्टेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो करंट अगर सर्किट आप बना रहे हैं तो दिस इनपुट रेजिस्टेंस, सॉरी दिस लिमिटिंग रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड दिस, अगर आप वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं देन इट इज कनेक्टेड इन सीरीज।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ थोड़ा हमें देखना है। Next we discuss current divider. Current divider. अब हम करंट डिवाइडर टेक्निक को देखते हैं कि पर हमने वोल्टेज डिवाइडर टेक्निक में देखा था कि अगर हम वोल्टेज डिवाइडर में हमने क्या देखा था कि अगर सर्किट किस तरह कनेक्शन होना चाहिए, सर्किट इज कनेक्टेड इन सीरीज, तब हम वोल्टेज डिवाइडर लगाए। अगर सीरीज में नहीं है तो हम उसको प्रयास करेंगे टू कन्वर्ट इन द सीरीज। करंट डिवाइडर में हमें पता है कि करंट का सर्किट कैसा है, लिमिटिंग रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, तो इट मीन्स से दैट जब हम करंट डिवाइडर लगाएंगे तो दिस सर्किट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल में होगा, देन वी विल बी सॉल्व इट। देखते हैं, चलिए क्वेश्चंस। सपोज दिस इज योर करंट सोर्स आई एंड दिस इज द रेजिस्टेंस R1 and this is the resistance R2. Okay, now what are the nodes? इस केस में नोड एक वोल्टेज मान लेते हैं, इस नोड पर आपकी इच्छा मानने की मान लीजिए फॉर इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब चलते हैं क्या करना है, इस पर थोड़ा देखते हैं क्या कहा जाए। यहाँ से करंट आई आ रहा है, तो करंट क्या डिवाइड हो रहा है, मान लेते हैं करंट I1 और करंट क्या डिवाइड हो रहा है I2, ठीक है। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट I1। करंट I1 की वैल्यू क्या होगा जो रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो I इक्वल टू आप क्या लिखेगा, I1 प्लस I2। आप लोगों को पता है नोडल एनालिसिस लेक्चर 2 में आपको बताया गया था। तो ये नोड आपका ग्राउंड है, तो आपके पास ये एक नोड है, ठीक है। इस नोड में करंट I इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो और आप ये नोड है, तो ये भी नोड के अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज V होगा, क्योंकि ये आपका नोड और ये नोड सारा एक क्या है, कॉमन नोड है, तो सारे क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होंगे, V होंगे। आप इस नोड पर अगर आप खड़े हैं तो आपका कौन कौन सा टर्मिनल कनेक्ट है, एक ये टर्मिनल कनेक्ट है, एक ये टर्मिनल कनेक्ट है और एक ये टर्मिनल कनेक्ट है। अब हम लगाएंगे बाय अप्लाइंग नोडल, आप लगाइए बाय अप्लाई नोड मेथड, नोड एनालिसिस। अगर आप नोड एनालिसिस लगाएंगे एट नोड ए, तो आप क्या लिखिएगा, V माइनस 0 बाय R1 प्लस V माइनस 0 बाय R2, क्योंकि इसके क्रॉस भी वही वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस भी इक्वल टू क्या होगा, इस डायरेक्शन में देखिए करंट आपको देखना, बट डायरेक्शन क्या होगा, दैट इज I, ठीक है। तो V बाय R1 प्लस V बाय R2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका I। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर आप दोनों का एलसीएम लिख लीजिए तो क्या होगा, R1 प्लस R2 इंटू R1 इंटू R2 इज इक्वल टू I होगा। नाउ इन दिस केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, V इज इक्वल टू I इंटू R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये आ जाएगा वोल्टेज V। ओके, नाउ वी सी, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा देखते हैं। व्हाट इज द करंट I1, I1 इस नोड पे करंट जा रहा है, तो इस नोड पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, V। इन दिस नोड आपका वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, V। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू V माइनस 0 बाय R1,
दिस इज द नोडल एनालिसिस, दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि यहाँ पर भी है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे ग्राउंड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V माइनस जीरो, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, और डायरेक्शन, और आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में मूव रहा है तो कहाँ से होगा, हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट मूव करता है, तो V माइनस जीरो डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो करंट आएगा। आपको वैल्यू V पता है, यहाँ दिस इज द वैल्यू V इज हेयर, पुट द वैल्यू ऑफ V, I1 इक्वल टू that is I into R1 into R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और ये R1 आपका ऑलरेडी पहले से यहाँ पर है, दिस R1 एंड R1 इज कैंसिल आउट। ओके, मतलब फाइनल करंट I1 क्या आएगा आपका, I1 इज I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखिए, जब आप वोल्टेज डिवाइडर की बात कर रहे थे तो वोल्टेज डिवाइडर में क्या था, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको वोल्टेज फाइंड करना है वो रेजिस्टेंस डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस दैट आर इन द सीरीज, जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में सबका एडअप करना है। यहाँ पर आते हैं, अब आप देखिए आपको किसके क्रॉस करंट फाइंड करना है, रेजिस्टेंस R1 के, तो डिवाइड बाय क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस R2। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आपका रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस आपको फाइंड करना है वो नहीं, उसके जो अदर रेजिस्टेंस है डेट रेजिस्टेंस, एंड देन डिवाइड बाय द सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अगर हम वोल्टेज डिवाइडर की बात करें इस केस में, सॉरी, अगर हम वोल्टेज डिवाइडर की बात करें तो वोल्टेज डिवाइडर कैसे लगेगा, अगर हम रेजिस्टेंस R1 पे कर रहे हैं तो जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस नहीं, उसके प्रीवियस रेजिस्टेंस दैट इज R2 डिवाइड बाय दिस R1 प्लस R2 एंड दिस सप्लाई करंट I। ओके, अगर हमें करंट I2 के क्रॉस फाइंड करना R2 रेजिस्टेंस के, तो क्या होगा, करंट जिसके क्रॉस करना है वो रेजिस्टेंस नहीं, उसके अनदर रेजिस्टेंस, तो अनदर रेजिस्टेंस के R1 डिवाइड बाय द सम ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इनटू करंट I। तो दिस इज कॉल्ड द करंट डिवाइडर रूल। ठीक है, नॉट टुडे क्लास, तो टुडे जो आपका जो क्लास था उसमें मेनली डिस्कस हुआ आपका सिंबल, कि आप अगर डीसी सप्लाई दे रहे हैं, वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं तो उसका सिंबल क्या होगा, अगर आप एसी सप्लाई दे रहे हैं तो उसका सिंबल क्या होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किस सिंबल का यूज़ करें, कौन सा आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा, व्हाट आर द सिंबल ऑफ द इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होगा, वोल्टेज डिवाइडर क्या होगा, करंट डिवाइडर क्या होगा, अगर दो वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है तो क्या होगा, एडअप होगा, कब सब्ट्रैक्शन होगा, दो करंट सोर्स अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो वो आपका कनेक्शन किस तरह का होगा, और वोल्टेज डिवाइडर। तो मेरा ये कहना है कि आफ्टर वी अंडरस्टैंड दिस मेथड, then we try to solve more and more questions. If you try to go to the internet and search the voltage divider questions, try to solve the current divider question, and you try to attempt more and more questions, then your concept will be clear. Okay, and now our next lecture is PN junction diode. So in the whole technique you understand KVL, you understand KCL, and then we understand the symbol of this. Then it is easily to solve all the electrical and electronic circuit at that time, if you understand properly. अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सारे सर्किट को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा जो लेक्चर 4 होगा, वी स्टार्ट द PN जंक्शन डायोड,
and it's to start move to the in the electronics department.